बैक टू अनदर वीडियो और आपका आज की वीडियो में स्वागत है। और आज जो वीडियो हम देखने जा रहे हैं वो मौसम की फेवरेट, क्योंकि एक तो मौसम की ट्रेन्स वाली फेवरेट होती है और एक ये वाली होती है। ये वाली कौन सी होती है बताएंगे मौसम? भाई टाइटल है 2022 रॉयल एनफील्ड हंटर 350 मीट द लेटेस्ट रॉयल एनफील्ड RE फर्स्ट लुक आउट ऑफ इंडिया। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन इससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके लिए मैं ब्लॉगिंग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। Autocar India. We're in Bangkok and we're here to ride Royal Enfield's latest creation, the Hunter 350. Wow. Now we haven't ridden the bike yet. We will be doing that tonight and tomorrow, and our reviews are embargoed till the 10th. But for now, I'm going to tell you about what's new with this bike. And the interesting thing is that a lot is new, more than many would have expected. Let's start with what's same so far, and that is the engine. This is the J Platform 350cc engine. It makes the same power and torque as the Meteor. And RE says that the few differences are that it has different ignition and fuel mapping. Output figures are same. They say it will be a little more characterful to ride. That's about it. Now the whole idea of this bike is that it should be fun, agile and easy to ride. And the first objective there is that this bike is lighter than before. It's 181 kilos, which makes it 10 kgs less than the Meteor. Royal Enfield says they've achieved that by doing quite a few things. The frame has some weight savings, the new wheels and tires have some weight savings. There is more plastic around than you would find on other motorcycles. And while they say this is 10 kgs lighter on paper, it's actually going to feel even more agile because of the smaller wheels and the sharper steering geometry. That's something we'll tell you in our video later. Design wise, this bike is intended to be a roadster, but there are some unique design attributes. For example, this little crease in the fuel tank here, that's unusual. The side panel, it's completely different to what you'll find on any other J platform bike. And the tail looks nice and neat. RE does some great accessories, and one of the accessories for this bike is a tail tidy, which has really been neatly done. You also have accessories in terms of mirrors, different seats, the usual RE stuff. Good quality, nicely finished. And that could be said for the rest of the bike as well. The switch gear, the master cylinder, the design, it's all the same as you'd find on the other bikes, and also goes for the speedometer console. Very familiar, like what you'll see in the Meteor and the new Scram. Classic. That's what it looks like when it's started up. And the tripper display is an optional extra, no matter which model of the Hunter 350 that you go for. Since we've started that, let's start this and see what the bike sounds like. So it is a slightly different note. The Meteor does sound a little different to the Classic, and this bike is going to sound a little different to the other two. As for the seating position, it's a nice 800mm seat height, slim at the center, very easy to manage. Foot pegs are a little more sporty than the other two bikes, and I think that's a good thing because it matches the character of this bike. RE says that it's also a little more cornering clearance than the Meteor, so you'll be able to lean it a little bit more. Going with that handling aspect is a fatter 110 section tire up front that looks really nice, and a 140 at the rear. These tires are by Seat. The brakes are the same as the other two bikes, but the master cylinder is slightly different. They say they've tuned that for the feel for this motorcycle. Now, there are going to be two different variants. What you see here is the higher variant. There is a lower variant called the Retro. That bike has spoke wheels, tube tires, single channel ABS, a rear drum, a tubular grab handle, and a halogen lamp at the back. We don't know what the prices are going to be yet because RE hasn't revealed them yet, but it's fair to say that the Hunter 350 is definitely going to be on the affordable end of the spectrum, especially that Retro variant. For now, this bike looks really promising. It looks like it's going to be a fun city commuter. But what it's going to be like to ride, you'll have to wait for the 10th. Enter 10th August. भाई रॉयल एनफील्ड बाइक की बात करें और जो है आपको अंदर से कोई वाइब्स ना है, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि भाई वो बेशक क्या नाम लेते हैं, एक विंटेज एक क्लासिक लुक होती है, लेकिन वो इतनी मजे की होती है ना कि आपका दिल करता है कि बस ये बाइक हो तो यही। जैसे सॉरी वो जैसे यहाँ पे कहते हैं मैं तो होंडा ही लैसा, तो इंडिया में वो कहना चाहिए मैं तो रॉयल एनफील्ड ही लैसा। लेकिन एक चीज है कि जो भी न्यू एडिशन इसका आता है ना,
आपको वो वाकई में अच्छा लगता है। मतलब एक तो उसकी जो बनावट है वो बड़ी खूबसूरत होती है और कलर कॉम्बिनेशन मुझे बड़े पसंद आते हैं इनके। हालांकि जो आज हम लोगों ने 350 हंटर देखी है इसमें आपको मुझे अब फिर नाम भूल जाता है कि जहाँ पर बोलते हैं वो पेट्रोल वगैरह डलता है टंकी, उसको क्या बोलते हैं? पेट्रोल टैंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेट्रोल टैंक पे जो कलर था ब्लू और व्हाइट का, मुझे वो काफी अच्छा लगा था। आई मीन बहुत कलर कम ऐसे मतलब उसकी कॉम्बिनेशन होते हैं जो आपको पसंद आते हैं और ब्लैक के साथ वो वाकई में सूट कर रहा था। अच्छा, एक मुझे ये चीज भी अच्छी लगी कि आपको मैट शाइन और इन सब का कॉम्बिनेशन उसमें नजर आ रहा था और थोड़ी स्पोर्टी लुक नजर आ रही थी। यह रॉयल इनफील्ड की मैं ये बात भी सबसे अच्छी लगती है कि इनका कलर कॉम्बिनेशन इतना मजे का आता है ना कि आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। एक कलर कॉम्बिनेशन और दूसरा जो है प्राइस, इसकी मैं बात करूं वो भी आपको जो है बहुत ज्यादा जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। अगर ये बात करें भाई 350 सीसी जो है यहाँ पर बहुत लिमिटेड एडिशन आपको लोगों के पास देखने को मिलेगी। बहुत कम लोगों के पास जो है वो बामुश्किल 150 सीसी से ऊपर बाइक जो है वो होती है। लेकिन इंडिया में मैं जब बाइक्स देखता हूँ तो भाई वहाँ पे तो मैं कहता हूँ कि रॉयल एनफील्ड कोई हमें 70 नजर आती है। भाई 70 तो वहाँ पे है नहीं, क्या हो गया 125 से नीचे बामुश्किल कोई बाइक नजर आती है। दूध वाले के पास होती है ऐसी ना। चले वो दूध वाले यार देखिए दूध वाला वो तो यहाँ पे भी वो कावासाकी का पुराना सा मॉडल जो है वो लेकर वो घूम रहा था दूध वाला। याद है वो जो हम लोगों ने करतारपुर वाला देखा था, तो जो मतलब वहां पर जो व्लॉग देखा था उसमें भी जो वो गांव था करतारपुर के पास जो इंडिया का, उसमें भी वो रॉयल एनफील्ड ही चला रहे थे ना। हाँ तो वही मैं बात कर रहा हूँ, मैं से कह रही वहां पे भी दूध वाला था। कहने का मतलब ये कि देखो गांव में भी लोग रॉयल एनफील्ड चलाते हैं। देखे ना, अगर आपको एक अच्छे बजट में जो है एक बहुत अच्छी बाइक मिल रही है तो हर कोई लेना पसंद करेगा। रॉयल एनफील्ड जो है ये जो हंटर है इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस देखी है ये 1.5 लाख से स्टार्ट होकर 1,70,000 तक जो टॉप मॉडल है वो एक्स शोरूम प्राइस है। तो थोड़े से टैक्स वगैरह डॉक्यूमेंट्स के जो होते हैं वो मुझे इंडिया का तो नहीं सकता पता वो क्या होता है, लेकिन यहाँ पर इतने ज्यादा नहीं होते। तो वो डाल डूल के जो है आप कह लेंगे आपको 2 लाख के अंदर तो मिल ही जाती होगी यार। अच्छा, वैसे पता नहीं है मुझे टैंक वाला पोर्शन बड़ा पसंद आया। आई डोंट नो, उसके ऊपर जिस तरीके से रॉयल भी लिखा हुआ है ना बड़ा खूबसूरत लगा। वो कलर भी कुछ रॉयल ब्लू टाइप है ना, तो इस वजह से भी जो है ना अट्रैक्ट कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है। फिर इससे पहले भी हमने एक रॉयल एनफील्ड बाइक देखी थी, उसमें जो है वो शाइनी सा सिल्वर शाइनिंग सा कलर था। हम लोगों ने जो लास्ट टाइम रॉयल एनफील्ड की देखी थी, जहां तक मुझे याद है वो कस्टमाइज, वो तो कस्टमाइज में उसकी बात नहीं कर रहा। हमने एक जो है वो देखी थी वो ऐसी शोरूम के अंदर खड़ी हुई थी, हाँ काफी देर पहले शोरूम के अंदर खड़ी थी। वो जो है ना शाइन सिल्वर कलर था, तो वो भी मुझे जो है यानी कि कलर कॉम्बिनेशन, हाँ कलर कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत अच्छा होता है। अगर मैट है तो मैट होगा, अगर शाइन में है शाइन में होगा, और ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है। फिर उसके साउंड की बात करें, कमाल। अच्छा, मुझे एक चीज और पता क्या लगती है रॉयल एनफील्ड की, कि ना आप अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग, आई थिंक क्योंकि जो चीजें आप लेते हो ना मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं पर आपकी पर्सनालिटी को भी डिपिक्ट कर रही होती है। हाँ। तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक वो चीज ले रहे होते हो कि जैसा आपने सोचा था ना, लाइक अगर जैसे रॉयल एनफील्ड अगर आपके पास हो और आप उसको, मैं तो भाई नहीं चला सकती, 181 मेरे लिए बहुत हैवी है। यार बाइक का जो है ना वेट 181 kg है और हैंडल का नहीं है, और बाइक आपने चलानी है, उठानी नहीं है। तुम्हारी बाइक का कितना होगा? मेरी बाइक जो है वो मेरा ख्याल है 150 kg है। हाँ जी, तो बाइक उठाती नहीं हूँ मैं, तो इसलिए मेरे से वो भी नहीं चलती। भैया आपको आप ये क्या आपको चलानी नहीं आती? नहीं ना, नहीं ना, आपको चलानी नहीं आती। आपने मेरी बात सुने, आपने मेहरान गाड़ी चलाई है ना? मेहरान गाड़ी जब खड़ी होती है उसका स्टीयरिंग मोड़ सकता है बंदा? नहीं। जब चलती है तो फिर कितने आराम से मुड़ जाता है, ठीक है ना? बाइक का भी यही आप बाइक का यही कह ले के हिसाब है। नहीं पता है क्या, लेकिन मुझे पता नहीं, शायद मुझे चलानी नहीं आती, मुझे गाड़ी चलानी ज्यादा आसान लगती है। कोई नहीं, आपको 2 टायर लगवा देंगे पीछे। लेकिन ये है कि मुझे बाइक चलानी डिफिकल्ट लगती है। उसकी एक रीजन ये है कि मैंने कभी वैसे इतना ज्यादा ट्राई भी नहीं किया, और दूसरा मुझे ऐसा लगता है मैं स्कूटी ज्यादा अच्छे तरीके से चला सकती हूँ। हाँ मुझे पता है इंडिया में बहुत सारी लड़कियां चलाती हैं रॉयल एनफील्ड, लेकिन ये है कि इंडिया में बहुत एक ये चीज हमें कॉमन देखने को मिलती है कि लोग लड़कियां स्कूटी चला रही हैं, बाइक्स चला रही हैं, डिफरेंट पाकिस्तान में बहुत रेयर है कि लड़कियां जो है वो बाइक्स या स्कूटी चलाती हैं। अब आगे तो भाई वैसे बहुत ट्रेंड हो गया, क्योंकि मैं भी इंडिया
के कंपैरिजन में बहुत कम है, बहुत पीछे, लेकिन अब जो है आगे यहाँ पे वो जो है ट्रेंड हो गया काफी ज्यादा, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले जो है मैं बाहर गया था तो 1 to 5 लड़की मेरे पास ऐसे गुजार के ले गई, मैं तो एकदम गए ये क्या हुआ है। बहुत अच्छी बाइक चला रही थी वो। मुझे ये बताओ कि एक दिन में तुम कितनी लड़कियों को देखते हो बाइक चलाते बाहर निकलते हो? मैं अगर मेन रोड पे बात करूँ ना तो 1-2 नजर आ ही जाती हैं। हाँ जी, तो ये बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है ना, बट पहले से बेहतर जरूर, हर बार चेहरा डिफरेंट होता है। ओके, सो गाइस ओवरऑल मुझे काफी ज्यादा मजा आया देखने का, एंड आई होप आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा, और आपको ये कैसी लगी जरूर बताइएगा, और आपके पास कौन सी रॉयल एनफील्ड है ये भी जरूर बताइएगा, और मौसम की ये एक और फेवरेट हम लोगों ने। भाई मेरी जो बाइक जो है ना वो कोई भी हो जो कि 150 सीसी प्लस हो या 150 सीसी हो, वो भी मुझे बहुत पसंद लगती है, अगर वो एक नॉर्मल प्राइस रेंज में हो। पाकिस्तान में जैसे बहुत ज्यादा ओवर प्राइसेस हैं, अगर इस तरह तो फिर नहीं मुझे पसंद। हाँ बिल्कुल, वो तो फिर आपकी पॉकेट के मुताबिक नहीं होती ना, तो ये चीज अच्छी लगती है कि एक तो मतलब, लेकिन फिर वही चीज आ जाती है कि आपकी खुद की कंट्री में मैन्युफैक्चर हो रही है, लोकल प्रोडक्शन है, तो डेफिनेटली वो बड़ा असर करता है। एनीवे गाइस ओवरऑल ये तो थी हमारी आज की वीडियो, और इसी के साथ हमें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कीप अस इन प्रेयर्स, बाय।